Good morning, students. Today we will start Unit 4 Planning. In last session, we have completed our Unit 2 Principles of Management, where we learnt about 14 principles, scientific techniques, and science principles. And with the help of that principles, managers can take various decisions to solve their problems and take systematically solution. Before start the unit, students, you know very well there are 5 functions of management which we have discussed in unit 1, and on that time I told you the one by one these functions we will discuss in detail when we will start this unit. We know there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling, and planning is the first function of the management. Now we will discuss in detail of this function. Planning is the basic function of the management, and the other functions are based on these functions. Without planning, we can't do other functions. Other functions, organizing, staffing, directing, and controlling, are meaningless without planning. तो planning is, it refers to thinking beforehand, करने से पहले सोचना. Under this, it is decided that what is to be done, how is to be done, when is to be done and by whom is to be done. कि हमने क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब करना है. Planning involves setting objectives and deciding in advance the appropriate course of action to achieve these objectives. इसलिए कहा भी जाता है इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल. अगर आपने प्लान ही प्रॉपर वे से नहीं किया तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे. सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, when to do it and who is to do it. This is the definition of planning. Next is features of planning. First is planning focus on achieving objective. Management begins with planning and planning begins with the determination of objective. Planning starts with the determination of objectives. We cannot think of planning in absence of objective. हम बिना ऑब्जेक्टिव के प्लान कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने प्लान करना किसके लिए है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेट आर ऑब्जेक्टिव, वी विल सेट आर गोल. तो अगर हमारा गोल क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, देन वी विल डू द प्लान. स्टूडेंट, सपोज आपका प्लान है कि मेरे को बोर्ड के एग्ज़ाम से 95% मार्क्स लेने हैं, तो दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव. नाउ यू विल प्लान कि मैं ये 95% मार्क्स कैसे अचीव कर सकता हूँ, मैं कौन कौन से एक्शंस करूँ. तो आई विल मेक अ प्लान. सेकेंड इज प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग जो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज अदर फंक्शंस ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कम्स लेटर, एंड इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी परफॉर्म्ड. बिना प्लानिंग के हम दूसरे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते. थर्ड इज प्लानिंग इज परवेसिव. परवेसिव मीन्स एवरीवेयर. प्लानिंग हमें हर एक जगह चाहिए. डिफरेंट लेवल्स होते हैं हमारे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. हर एक लेवल का मैनेजर जो है प्लान करता है अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए. तो इट अप्रोप्रिएट टू कॉल इट ऑल परवेसिव. प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, whether that is a higher level management, whether that is a lower level manager. So it is clear that all managers working in an enterprises have to plan their activities. कि हमें अपनी जो एक्टिविटीज़ करनी है प्लान के अकॉर्डिंग करनी है. Next is planning is continuous. It is a continuous process because plans are prepared for a particular period. एक है ये हम एक टाइम के लिए बनाते हैं और जैसे ही हमारा वो टाइम ख़त्म हो जाता है then we will make a new plan. एंड इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर प्लान्स में कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि प्लानिंग इज़ डन फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, तो प्लान में अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज आ जाए तो उस प्लान को हम रिवाइज करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें हम चेंजेस लाते हैं. और अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में भी चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यू ऑब्जर्व दैट कि जो कंपनीज हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपने प्रोडक्ट में इनोवेशंस या उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाते रहते हैं बिकॉज ऑफ द change the taste of the customers. Or if a new competitor enter in the market with a low price of the product, then company will also make a plan to produce the product at a low price to face the competition. So these are the planning is the continuous process. Next is planning is futuristic. Planning is forward looking. Planning is always done for future. It is never done for the past. All the managers try to make predictions and assumptions for future. वो फ्यूचर्स के assumptions लगाते हैं and then we will make the plan.
for future activities. So it is called futuristic. Sixth is planning involve decision making. प्लानिंग में हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमें मिलते हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. So when different alternatives are available and we have to select most suitable alternative, so we cannot imagine planning in the absence of choice, because in planning function managers evaluate various alternatives and select the most appropriate alternative. So it is a decision making process. Seventh is planning is mental exercise. It is not any physical activity, it is a mental exercise, mental process. It requires higher thinking. That is why it is kept separate from operational activities. इसलिए हमारी operational activities से अलग होती है. What to do, how to do, when to do, who is to do it. ये सारी हमारी क्या है, mental activities, जिसके लिए हमें mind अपना हम यूज़ करते हैं प्लान करने के लिए. तो it is a mental exercise. So it is right to call planning is an intellectual process. So these are the 7 features of planning. Next is importance of planning. First is planning provide directions. Under the process of planning, the objective of the organization are defined in simple and clear words, and after that it provides a direction to the efforts of employees. Planning makes clear what employees have to do, how to do it. इट मीन्स प्लानिंग में हम हर एक एम्प्लॉयज़ को पहले ही इंटीमेट कर देते हैं कि किस एम्प्लॉय ने क्या काम करना है, ताकि कौन सा एम्प्लॉय कौन सा एफर्ट्स करेगा, किस वर्क में वो एफर्ट करेगा. इफ़ देयर वर नो प्लानिंग, एम्प्लॉयज़ वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स डिज़ायर गोल. अगर प्लानिंग नहीं होगी तो एम्प्लॉय डिफरेंट डायरेक्शन से काम करेंगे, जिससे कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे. सेकेंड इज़ प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. बेसिकली प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज uncertain, and there is a uncertainty and unexpected situations every day, and with the help of planning possible changes in future are anticipated. हम प्लानिंग की हेल्प से पहले से फ्यूचर को एंटिसिपेट एजम्पशंस लगा लेते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, एंड वी विल प्लान वेरियस एक्टिविटीज़ इन द बेस्ट पॉसिबल वे. इन दिस वे इससे हमारा फ्यूचर के अनसर्टेनिटी की जो रिस्क है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. अंडर प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड. हम पहले से ही फ्यूचर की एक्टिविटीज़ प्लान कर लेते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय हुम टू डू. इससे क्या होता है कि इस सिचुएशंस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन रहता है, कोई भी एक्टिविटी ओवरलैप नहीं होती. सपोज हमारे 3 वर्कर्स हैं ए, बी एंड सी. हमने ए को काम दिया सेल का, बी को प्रोडक्शन का, सी का परचेज़ का. तो यहाँ पर कोई भी काम ओवरलैप नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड कि विच एम्प्लॉय विल डू विच वर्क. कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा. अगर सेल करो तो सेल कौन करेगा, ए. बी और सी विल नॉट डू सेल, बी. इट आल्सो अवॉइड द वेस्टफुल एक्टिविटीज़. सपोज अगर आपकी कंपनी ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग मीन्स यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, तो आप उसमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का प्लान नहीं करेंगे. यू जस्ट प्लान आउट सेल्स एंड परचेज एक्टिविटी. नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़. एज वी नो, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. It requires high thinking and it is an intellectual process. So there is a great scope for finding better ideas, better methods and procedures to perform a particular job. Planning process forces managers to think differently and assume the future conditions. So it makes the managers innovative and creative. So it leads to the birth of innovative and creative आइडियाज़. प्लानिंग्स में हम नए नए आइडियाज़, और यहाँ पर ग्रेटर स्कोप होता है नए आइडियाज़, नए मेथड्स को परफॉर्म करने का. नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन. डिसीजन मीन्स देयर आर द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड वी विल चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. हाउ कैन वी चूज, हाउ कैन वी टेक द डिसीजन? We will compare the pros and cons of each alternatives. Pros and cons means merits and demerits of each alternative, and after that we will choose the best alternative. So it is facilitate decision making. Last is planning establish standard for controlling. There is a relationship between planning and controlling. अगर हमें प्लानिंग सक्सेसफुल करना है तो साथ में हमें कंट्रोलिंग भी करना पड़ेगा. आपके प्लान तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप उसको फॉलो अप भी करेंगे और चेक भी करेंगे, कि इवेल्युएट भी करेंगे कि आपका जो काम है, जो वर्क है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू डूइंग प्लान और नोट. एंड चेक हम कैसे करेंगे? प्लान कंट्रोलिंग से. व्हाट इज़ कंट्रोलिंग? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद
standard performance and find out the deviation if any and take corrective action to remove that deviations. अब कंट्रोलिंग के लिए हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड. और स्टैंडर्ड कहाँ से बनेगा? प्लानिंग से. क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ. सो प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग. विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल. तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट planning, its features and its importance. In next session we will discuss limitation of planning and process of planning. Thank you students.